ہم اسٹارٹ کر دیتے ہیں. اس وقت 20 ابو ویورز ہو گئے ہیں, تو جیسے جیسے آتے جائیں گے وہ جوائن کرتے رہیں گے. السلام علیکم ایوری ون. آئی ایم ڈاکٹر نعیمہ ربانی فرام فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی. آج ہم نے یہ سیشن اسپیسیفکلی ڈاکٹرز اور اسٹوڈنٹس کے لیے اسٹارٹ کیا ہے جو اس وقت فرنٹ لائن پہ اس پینڈیمک کے دوران کام کر رہے ہیں, اور وہ اسٹریس سچویشن یا کچھ ایسی پرابلمس فیس کر رہے ہیں کہ وہ کوپ اپ نہیں کر پا رہے اس ڈیزاسٹر ٹائم پہ. ان بورڈ ہمارے پاس اس وقت سائیکالوجسٹ ہیں ہمارے ساتھ جی سی یو یونیورسٹی سے فیصل آباد سے. ڈاکٹر کیسر عباس از پی ایچ ڈی فرام آئی سی پی کراچی, اور ان کا کرائسس سچویشن میں ڈیلنگ اینڈ مینجمنٹ میں ایکسپیرئنس ہے. اینڈ وی ہیو ماہنور حسن, شی از ایم فل اسٹوڈنٹ فرام جی سی یو فیصل آباد. ماہنور, آپ ہمیں بتائیں کہ کیسے اس سچویشن میں ڈاکٹرز اور اسٹوڈنٹس یا پیرامیڈکس یا کوئی بھی ہیلتھ کیئر ورکرز جو ڈیل کر رہے ہیں اسٹریس کو, ان کو کیسے کوپ اپ کرنا چاہیے, یا ایسے کیسے ایشوز ہیں جو آپ کو پتہ ہے کہ وہ فیس کر رہے ہیں اس وقت. السلام علیکم سب کو. پہلے تو تھینک یو سو مچ ڈاکٹر نعیمہ, آپ نے مجھے ایڈریس کرنے کا موقع دیا, اور ڈاکٹر کیسر کا جنہوں نے مجھے کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے ہیلپ کرنے کے لیے کہا. باقی جہاں تک بات ہماری کووڈ کو لے کر ہے, جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ آل اراؤنڈ دا ورلڈ جب ہم اس پورے سینیریو کو چیک کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ کووڈ نے کس طریقے سے, کرونا نے جو ہے وہ ہر ایک انسان کو اس وقت اسٹریسفل کیا ہوا ہے, ڈپریس کیا ہوا ہے, اور انزائٹی, یہ ساری چیزیں اب کامن ہو چکی ہیں کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بھی لوگوں کی جو ضروریات زندگی ہیں وہ بھی محدود ہو گئی ہیں, اور ان کا زندگی کا رہن سہن جو ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو گیا ہے کافی حد تک. اب بات یہ ہے کہ پچھلے کچھ ماہ میں ہم سب جو ہیں وہ لوگوں کی, عام لوگوں کی چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ لوگ اپنی لائف میں ڈسٹرب ہیں. مین وائل ہم لوگوں نے, میرا خیال ہے, نگلیکٹ کیا ہوا ہے ان فرنٹ لائن سولجرس کو جو اس پورے سینیریو میں لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے آن دا فرنٹ لائن جو ہے وہ وارئر کی طرح لڑ رہے ہیں. اب ایسے ہے کہ اب ان وارئرس کی بھی ہمت ہے کہ وہ اب تک جو ہے وہ سینیریو میں جس میں کوئی بھی آگے نہیں آیا, وہ اس سینیریو میں جو ہے وہ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنے نکلے ہیں. لیکن اب بات یہ ہے کہ اس پورے سینیریو کو مد نظر رکھتے ہوئے اب وہ لوگ بھی کہیں نہ کہیں اسٹریسفل ہونا شروع ہو گئے ہیں, وہ بھی اسٹریس کو جو ہے شکار ہونا شروع ہو گیا اسٹریس کا. اور جب ہم لوگ اسٹریسفل کرائسس کو دیکھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو بہت زیادہ اسٹریس دے رہی ہیں, سب سے پہلی چیز تو آن دا فرنٹ کرونا ہے. لیکن جو وارئرز جو ہمیں خود سکھا رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے کس طریقے سے اس کرونا سے لڑنا ہے, جیسے کہ ہم اسٹیٹسٹکس میں دیکھیں ہیں آج پاکستان میں 1,44,000 لوگ جو ہیں وہ کرونا پیشنٹس ہیں, لیکن ڈیتھ جو ہے وہ 2,700 لوگوں کی ہے, اور ریکورڈ ریشو جو ہے وہ 53,000 لوگ, یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آلموسٹ 53,000 لوگ جو ہیں وہ اس سے ریکور بھی ہوئے. اس پورے سینیریو کو ڈیل کرنے میں جو فرنٹ لائن سولجرز کا کردار ہے وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. لیکن اس سب کو ہم کہتے ہیں نا سچویشن کے ہر ایک تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں, پازیٹیو بھی ہے نیگیٹو بھی ہے. دا تھنگ از کہ پورے سینیریو کو جب ہم لوگ اینالائز کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ پبلک جو ہے وہ زیادہ تر ان کو نیگیٹیولی ہاتھوں میں لے رہی ہے. آئے دن ان کو نئے نئے بلیم دیے جا رہے ہیں, کوئی کہتا ہے کہ انجیکشنز لگا رہے ہیں, کوئی کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے ڈالرز کمانے کے لیے کام کر رہے ہیں, کوئی کہہ رہے ہیں کہ یہ کرونا ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, یہ تو خود ہی لگے ہوئے ہیں ان سب چیزوں کو. تو یہ سارے جو بلیم گیم ان کے ارد گرد چل رہی ہے, اور جو ایٹیٹیوڈ ہے ان کے اٹینڈنٹس کا, وہ سب جو سارے کلیکٹیولی اب ڈاکٹرز کو اسٹریسفل کرنا شروع ہو گئے ہیں. ظاہر ہے ایک انسان نے کام کرنا ہے, اس کے لیے اس کو ہمت چاہیے. پبلک کے اس رویے کی وجہ سے ان کی ہمت ٹوٹنا شروع ہو گئی ہے. میں یہاں پر صرف پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گی وہ مین اسٹریسرز جو اس وقت فرنٹ لائن سولجرز فیس کر رہے ہیں. اس کے بعد میں اپنے استاد محترم ڈاکٹر کیسر عباس کو دعوت دوں گی کہ وہ ان اسٹریسز جو ہیں ان کو مینیج کرنے کے لیے لوگوں کو ہدایت دیں. تو یہاں پہ اگر ہم ان اسٹریسز کو نامینیٹ کریں, ہائی لائٹ کریں کہ کون کون سے اسٹریسز ہیں جو انسان کو اس وقت اسپیشلی ڈاکٹرز جو ہیں وہ فیس کر رہے ہیں, وہ یہ پہلی چیز تو یہی ہے کہ ہم لوگ افیکٹ ہو گئے ہیں تو ہمارے گھر والے, جو ظاہر سی بات ہے جب ہماری فیملی میں کوئی ایک بھی افیکٹ ہوتا ہے تو اس کو پوری فیملی کی ٹینشن ہوتی ہے کہ کہیں یہ نہ افیکٹ ہو جائے. جس طریقے سے نارمل ہیومنس جو
دوسرے ہیں جو نان پروفیشنلز ہیں وہ اپنی کیئر کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کے گھر والوں کو یہ انفیکشن نہ ہو, یہ کرونا نہ ہو. اسی طریقے سے ڈاکٹرز بھی اتنے ہی ورڈ ہیں ان چیزوں کو لے کر کہ کہیں ہم لوگ انفیکٹ ہو گئے تو ہمارے جو ایج ایلڈرز ہیں جو گھر پہ ہیں, ہمارے ماں باپ ہیں یا بہن بھائی ہیں, کہیں وہ نہ اس سے انفیکٹ ہو جائیں اور پھر ہم ان کو کس طریقے سے سنبھالیں گے, پہلی چیز. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جب وہ اس سچویشن سے لڑ رہے ہوتے ہیں, ظاہر سی بات ہے وارریئرس کو چاہیے ان کے ہتھیار. ہر انسان کے ڈفرینٹ ہتھیار ہیں. اگر وہ انسٹرومنٹ سے, اپنے فرنجز وغیرہ سے اور اپنے جتنے ٹیکنیکل انسٹرومنٹس ہیں ان سے لڑ رہے ہیں, تو ساتھ ساتھ ان کو ہمت بھی چاہیے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب وہ ان کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے پیشنٹس کو, تو جو اٹینڈنٹس ہیں ان کا جو رویہ ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے نان کوآپریٹو ہوتا ہے. ایک بیہیویئر انسان کو بہت زیادہ افیکٹ کر دیتا ہے. ایک نیگیٹو بیہیویئر پازیٹیو بیہیویئر پہ بہت ہیویلی افیکٹ ہوتا ہے. آپ کو ایک نیگیٹو تھاٹ کو نکالنے کے لیے 7 پازیٹیو تھاٹس کی ضرورت پڑتی ہے ایک ٹائم پہ. تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ جب ایک نیگیٹو بات آپ کے منہ سے نکلتی ہے, کسی اٹینڈنٹ کے منہ سے نکلتی ہے ان ڈاکٹرس کے لیے, اس ٹائم جو وہ ان کے گھر والوں کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں ان کی ہمت کس طریقے سے جو ہے وہ ٹوٹے گی. ہوتا یہ ہے کہ اٹینڈنٹس جو ہیں وہ ان کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو ہو آپ بالکل ان کو ٹریٹ صحیح نہیں کر رہے ہو. ان کے سر پہ سوار رہتے ہیں, ان پہ غیر یقینی دکھاتے ہیں کہ ہمیں یہ ٹرسٹ نہیں ہے, ہم ان کو یہاں پہ چھوڑ کے جائیں گے تو ہمیں کچھ گھنٹے بعد جو ہے خبر ملے گی کہ ہمارا پیشنٹ ایکسپائر ہو گیا, آپ نے ان کو کوئی انجیکشن لگا دیا. اب اس پورے سینیریو میں ان کو بلیم کیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے ان کی ہمت جواب دینے لگی ہے. وہ اگریسو بھی ہو رہے ہیں, وہ فرسٹریٹ بھی ہو رہے ہیں. اس کی وجہ سے وہ سنبھال بھی نہیں پا رہے ہیں اس سچویشن کو کہ وہ اپنے آپ کو سنبھالیں اس ٹائم پہ, یا پھر اس پیشنٹ کو سنبھالیں جن کو انہوں نے دیکھنا ہے, یا ان کے اٹینڈنٹ کو سنبھالیں کہ اس کے بیہیویئرس کو سنبھالیں کہ ہم اس کو کس طریقے سے کوپ کریں. پھر ایک چیز آتی ہے ایک ڈر. اب یہاں پہ جتنے مرضی پیشنٹس جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں, ان کی ریکوری بھی ہو رہی ہے. ابھی اگر ہم کچھ منتھ پہلے کی بات کریں تو اب یہ چیز سامنے نہیں آئی تھی کہ ہم کورونا سے لڑ رہے ہیں اور اس کو جیت سکتے ہیں ہم اس سے, کیونکہ آل دا ڈے ہم یہ دیکھتے تھے کہ بس کرونا آ گیا, کرونا کا خوف پھیل گیا, ہر طرف پینک ہے کہ ایک ٹیرر قسم کا کہ بس کرونا ہو جائے گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اور لوگوں نے اپنے ذہنوں میں یہ سوار کر لیا تھا کہ اگر اس بندے کو کرونا ہو گیا تو سمجھو گیم ختم, لائف ختم. اب اس سینیریو میں جب ان ڈاکٹرز نے یہ سمجھانا شروع کیا کہ آپ سمپٹومالوجی کو اگر فالو کرتے ہوئے, اپنے سمٹمس کو سنبھالتے ہوئے اپنا ٹریٹمنٹ خود کرنا شروع کرتے ہیں, تو آپ کافی حد تک اپنے آپ کو اسٹیبل کر لیتے ہیں, اتنا کہ آپ کو ہاسپٹلس جانے کی ضرورت نہ پڑے. اس کے لیے آن لائن جو ہے میڈیکل ہیلپ کے لیے ہیلپ لائنس بنائی گئی. اس کے علاوہ بہت ساری جو ہیں وہ والنٹیئرس جو ہیں وہ سامنے آئے کہ آپ ہمیں وہیں بیٹھ کے بتا دیں, آپ کو ہاسپٹل آنا نہ پڑے, تاکہ آپ کو ہاسپٹل میں یہ وائرس لگنے کا زیادہ خطرہ ہے. کیونکہ آل دا وے آپ دیکھتے ہو کہ ہر طرف جو ہے وہ جرمز ہی ہیں. لوگ جو ہے وہ ان کی باتوں کو پہ یقین نہیں کرتے. سب سے پہلی چیز جو ان کو ہدایات دیتے ہوئے جو فیس کرنی پڑتی ہے کہ ان کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں ورڈ ہی نہیں سمجھا جا رہا. ہم لوگ جو ان لوگوں کے لیے لڑ رہے ہیں, ہمیں یہ فیس کرنا پڑتا ہے کہ جب ہم لوگ ان چیزوں کو کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ ایسے نہیں ایسے کر لیں, تو ہمیں آگے سے باتیں سننے کو ملتی ہیں. لوگ ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں تمہیں کیا پتا ہے, ایسے نہیں ایسا. اور پھر ایک اور چیز, جب ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈاکٹرز جو ہیں وہ ایس او پیز بناتے ہیں یا کوئی انسٹرکشنز بتاتے ہیں کہ آپ لوگ ان چیزوں کو فالو کرو, تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ بہت حد تک ان چیزوں کو کنٹرول کرو. ہم نے دیکھا جیسے پولیٹیکل ویوز میں لاک ڈاؤن کا مشورہ دیتے رہے ڈاکٹرز, لوگوں کو گھروں میں رہنے کا, مختلف ادویات, ہر چیز کے بارے میں جو ہے وہ انسٹرکٹ کرتے رہے. لیکن لوگوں نے بھی ان چیزوں کو بادر نہیں کیا. ہماری پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو بادر نہیں کیا. اور پھر سچویشن اتنی ورس سے ورس ہوتی جا رہی ہے کہ آپ کے جو پیشنٹس ہیں وہ ہاتھوں سے نکلتے جا رہے ہیں, اور جب وہ ہاسپٹل لائے جاتے ہیں ود ان آورس وہ ایکسپائر بھی ہو جاتے ہیں. اور ان سب چیزوں کا بلیم جو ہے وہ جاتا ہے ڈاکٹرز پہ. اس کے علاوہ ریسورسز نہیں ہیں. وین دے آر اباؤٹ دا ریسورسز, تو ان کو وہ ریسورسز نہیں دیے جا رہے, پرووائڈ نہیں کیے جا رہے. اوپر سے کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کو وہ ساری فیسلٹیز دے دی گئی ہیں لیکن اندر نہیں ہے. اب یہاں پہ میں مانور اس کو ہمارے سمرائز کر پاس رہی ہوں ڈاکٹر کیسر کے لیے کہ 2 to 3. مانور جی یہ ساری سچویشنز ہیں مطلب ڈاکٹر کے پاس جو بھی, ان کا ہمارے پاس سولوشن کیا ہے کہ ہمیں پتہ ہے یہ پرسسٹ کریں گی. ہماری
ये मेंटालिटी निकालना कि कोरोना जो है वो रियल है, एग्जिस्ट करता है, ये लोगों के दिमाग में डालना हमारे लिए मुश्किल है इस वक्त। तो आप क्या कहते हैं डॉक्टर्स को कैसे डील करना चाहिए इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, क्योंकि इस वक्त उनको खुद भी इन्फेक्ट होने का डर है, पेशेंट की ब्लेम्स पे भी वो अफसरदा हो जाते हैं, तो हमें इस चीज़ों से डील कैसे करना चाहिए? बात डॉक्टर नाइमा वही है कि जो इंसान कन्वे कर सकते हैं इन सब चीज़ों को बेहतर तरीके से, पहली बात उसको डीवैल्यू कर दिया गया, उसके अल्फाज की, उसकी बातों की वर्ड्स खत्म कर दी गई है, जिसकी वजह से वो कुछ भी कहता रहेगा ना तो अगले जो है वो कान नहीं धरेंगे, वो जो मर्जी इंस्ट्रक्ट करते रहें डॉक्टर्स, जो पब्लिक है उन्होंने ये कहना है कि बस बोल रहे हैं, बोलने दो इनको। दूसरी चीज़ ये है कि पहले तो उनकी वर्क जो है वो बहाल करने की ज़रूरत है, पब्लिक को भी, उनके इर्द गिर्द के प्रोफेशनल्स को भी, कि वाकई वो जो बात कर रहे हैं वो किसी ना किसी जाविये पे कर रहे हैं, आपको उन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, जाहिर सी बात है अब जब लड़ने वाले ही थक रहे हैं तो उनको थकने से बचाने के लिए हम लोगों को जो है जुटना पड़ेगा, हम लोगों को उनकी स्ट्रेंथ नहीं टूटने देनी, क्योंकि अगर हमारे वॉरियर्स थक गए ना, हमारे वॉरियर्स टूट गए तो ये कोरोना पेशेंट्स जो है वो कोई भी नहीं संभाल सकता है। तो उनको किस तरीके से उन स्ट्रेसर्स को मैनेज करना है, जो ब्लेम गेम्स हैं उनको कैसे मैनेज करना है, इसके लिए मैं डॉक्टर कैसर अब्बास साहब को कहूँगी कि वो जो स्ट्रेस मैनेजमेंट को समझते हैं बेहतर, इस सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए जो हमारे डॉक्टर्स ऑप्ट कर सकते हैं उसको बेहतरीन तरीके से जो है वो एड्रेस करते हैं। सर प्लीज, सर कैसर, ओवर ओवर टू टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मिस महानूर एंड डॉक्टर नाइमा, आपने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। बेसिकली तो ये एक हकीकत है कि कोरोना का आना, जैसा कि हम ये समझते हैं कि ये कायनात के अंदर एक वो तब्दीली है जो कि हर बंदा एक डिफरेंट सिचुएशन से उसको महसूस कर रहा है और उसके अंदर एक खौफ और हरास की जो सिचुएशन है वो पैदा हो रही है, ठीक है। लेकिन इसमें अगर हम बुनियादी फैक्टर की बात करें कि जब भी इंसानी ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि इंसानी ज़िंदगी एक मुसलसल अमल का नाम है, में चंद तब्दीलियाँ आती हैं और उन तब्दीलियों की बाज़ दफ़ा वजह कुछ नेगेटिव फैक्टर होते हैं जो इंसानी ज़िंदगी को मुतासिर करते हैं। तो उनमें एक जो रूट काज है वो एक जो है कह सकते हैं कि वो स्ट्रेस है। स्ट्रेस के जैसे, यानी कि मेरे साथ डॉक्टर नाइमा हैं, ये बेहतर जानती हैं कि स्ट्रेस एक ऐसी जो है वो प्रॉब्लम है जो सिर्फ नफ्सियात के अंदर ही नहीं बहुत सारे मसाइल को पैदा करती, बल्कि मेडिकल जो है वो प्रॉब्लम के अंदर भी एक बहुत बड़ी जो है वो वजह बनती है। तो आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम स्ट्रेस के फैक्टर तो बहुत सारे हैं और उनको बहुत सारे एंगल से हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हम बुनियादी तौर पे ये चीज़ देखेंगे कि ख़ास तौर पे इस सेशन का जो मकसद है कि जो मेंटल हेल्थ यानी कि हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं जो फ्रंट लाइन के ऊपर फाइट कर रहे हैं, उनको हम किस तरह जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए छोटी सी एक प्रेजेंटेशन है जो मैं साथ जो है वो भी शेयर करना चाहूँगा और साथ उसको जो है वो कुछ चीज़ें जो है वो डिस्कस भी करना चाहूँगा। तो आई थिंक सो कि ये साथ जो है वो शो हो रही होगी प्रेजेंटेशन। यस सर। इसमें जो है हम अगर स्ट्रेस को डिफाइन करें तो दो चीज़ें जो है ना उसमें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं कि एक, जब कोई प्रेशर जो है यानी कि जब दबाव जब बढ़ता है, लेकिन उस दबाव को रोकने के लिए जो रिसोर्सेज होते हैं वो कम हो जाते हैं, तो एक तो ये डेफिनेशन है कि उस वक्त जो कंडीशन डेवलप हो जाती है वो स्ट्रेस कहलाती है। क्योंकि स्ट्रेस को हम देखें तो एक उसकी नॉर्मल सिचुएशन भी है कि एक बैलेंस जो है कि एक वक्त तक अगर हम स्ट्रेस को नहीं लेते तो हम उसको मैनेज नहीं कर सकते, हम उसको अच्छे तरीके से जो है वो चीज़ों को लुक आफ्टर नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम उसके साथ साथ जो है वो इसको इस तरह लेते हैं कि वो स्ट्रेस जो है
वो आगे बढ़ता है और वो चीज़ यानी कि एक प्रॉब्लम का शिकार हो जाती है, तो वो हमारे लिए एक जो है वो मसला बनता है, और उस मसले को लाज़िम बात है फिर हम क्लिनिकली जो है वो देखते हैं और उसकी मैनेजमेंट जो है वो देखते हैं। अगर हम इसको मज़ीद देखें तो स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बारे में हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, और उस अवेयरनेस की बात क्या है कि हमें ये चीज़ देखनी है कि कौन सी चीज़ है जो हमारी लाइफ के अंदर जो है वो स्ट्रेस क्रिएट कर रही है या उसकी जो है वो वजह बन रही है। तो फिर हमें देखना है कि हम उस स्ट्रेस को बैलेंस कैसे रख सकते हैं, और बैलेंस के लिए ये चीज़ें हैं कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमारे पास जो एक वसाइल हैं जो हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं कि हम उसको कोप कर सकते हैं। अगर हम उस स्ट्रेस को जिसके बारे में हम अवेयरनेस रखते हैं और प्लस हम उसको बैलेंस कर लेते हैं, मकसद है कि एक स्ट्रेसर जो है वो इंसान की ज़िंदगी में आता है, लेकिन वो उसके बारे में सोचना शुरू कर देता है, उसको मैनेज करना शुरू कर देता है, उसको जो है वो रेगुलेट करना शुरू कर देता है, अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, और साथ जो है अपनी जो बाकी कोपिंग रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। तो जब ये दोनों चीज़ें मिलेगी तो वो आगे जो है सी जो है वो उसको कंट्रोल कर लेता है। तो जब उसके अंदर कंट्रोल की सलाहियत आ जाएगी तो डेफिनेटली स्ट्रेस जो है फिर उसके कम नुकसान करना जो है वो शुरू कर देता है। इसके साथ जो है एक और चीज़ जो है वो ये है कि स्ट्रेस को अगर हम देखें तो जो बुनियादी इसके फैक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, उनमें अगर स्ट्रेस को हम डिफाइन करें तो स्ट्रेस जो है वो है क्या? स्ट्रेस बेसिकली एस जो है स्टॉप स्लो डाउन, कि जब कोई स्ट्रेसर एक ज़रूरत से गैर मामूली शक्ल इख्तियार कर जाता है तो फिर इंसान क्या होता है कि वो स्लो डाउन होता है। टी क्या है? टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यानी कि आप अपने आप को स्लो डाउन करें, अपनी जो है वो एहतियात करना शुरू करें। आर क्या है कि रिलैक्स करें, एंड रिमाइंडर फॉर द बेसिस के जो आपके अंदर जो कॉग्निटिव रिसोर्सेज हैं, जो वसाइल हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, उनको रिमाइंड करें। एक्सरसाइज एंड इट राइट, कि आप जो है कुछ एक्सरसाइजेज, क्योंकि एक्सरसाइजेज करना जो है ये भी आपके जो है वो एक जिस्म को जो है वो रेगुलेट करता है, जिससे आपका ब्रेन भी जो है वो रेगुलेट होता है, और आप उसके लिए एक स्ट्रेस की सिम्टम में एक चीज़ होती है कि आपकी भूख प्यास जो है वो सफ़र करती है। तो ऐसी सिचुएशन में आप जो है वो एक अपनी प्रॉपर डाइट लेना शुरू करें, एंड स्टेप्स वन एट अ टाइम, कि आप ये सोचें कि बाज़ दफ़ा जब इंसान स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसकी दिमाग के अंदर बहुत सारी चीज़ें चलना शुरू हो जाती हैं, बहुत सारी ऑटोमेटिक थाट एक्टिवेट हो जाती हैं, और वो उनको जब देखता है तो वो और परेशान हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप जो है वो ऐसा इंतखाब करें कि आप किसी एक वक्त में, जैसे कहते हैं ना कि वन एट अ टाइम, कि एक चीज़ को उसको एक यानी के अमल से या उसको एक जो है वो मेथड से या एक मैकेनिज्म से उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, एंड देन क्या है कि आप जो है उसको सक्सेस जो है वो गेन करेंगे। इससे अगर हम आगे बढ़े तो स्ट्रेसर जो है वो कितनी तरह के होते हैं? स्ट्रेस दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल होते हैं, एक एक्सटर्नल होते हैं। अब इंटरनल स्ट्रेसर जो हैं ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि एक इंसान अपने बारे में वो सोचता है कि शायद मैं ये चीज़ जो है वो इस तरह नहीं कर सकूँगा। अगर हम इसी इंटरनल स्ट्रेसर की कोविड-19 के रेफरेंस से अगर हम बात करें कि जो हमारे डॉक्टर या जो प्रोफेशनल फ्रंट लाइन के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं, तो एक उनके अपने दिमाग में ये बात आती है कि ये खतरनाक बीमारी है, वबा की शक्ल में जो है ये आगे बढ़ती है और ये मुझे लग सकती है और मैं सफ़र कर सकता हूँ। अगर मुझे ये बीमारी होती है तो मेरे कोलीग को ये इनके अफेक्ट कर सकती है, मेरे जो फैमिली मेंबर हैं उनको अफेक्ट कर सकती है। अब हालांकि ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन ये चीज़ जो है, ये क्वेश्चन जो है वो एक अपने दिमाग में जो है वो चल रहे हैं।
अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि एक स्ट्रेस की कैफियत वो है जो इसको रेगुलेट करती है कि स्ट्रेस लेना जो है वो एक लिहाज से अच्छी बात है, मकसद है कि वो अपनी केयर करेगा, वो जब अपनी जो है वो बॉडी को कवर रखेगा, डिस्टेंस जो सोशल डिस्टेंस है उसको मेंटेन रखेगा, जो पेशेंट डॉक्टर का डिस्टेंस है उसको मेंटेन रखेगा, घर जाएगा तो वो डॉक्टर अपनी प्रिवेंटिव मेजर को जहन में रखेगा, तो उससे उसको जो है वो फायदा होगा। लेकिन एक चीज ये है कि कुछ ऐसे लोग वो होते हैं जो वल्नरेबल होते हैं, तो उनमें यही चीज जो है वो एक्सीड करने लगती है कि एक चीज वो ख्याल उसकी इंटेंसिटी नॉर्मल से ज्यादा होना शुरू हो जाती है। जब वो नॉर्मल से ज्यादा होना शुरू हो जाती है तो वो अपने जो है वो अंदर उसके अंदर कुछ फिर ऐसी अलामात और ऐसे जो है वो सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं जो कि हम आगे डिस्कस करते हैं। फिर एक्सटर्नल क्या है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ये है कि आप एक हॉस्पिटल सेटिंग में काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपने ये चीज़ भी देखनी है कि जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है वो बहुत कम वसाइल हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए हमने काम करना होता है, तो उसमें देखें तो जिनके उसकी जो प्रिवेंटिव मेजर हैं वो काफ़ी जो है वो कम होंगी। मीन के पेशेंट का जो है वो रश बढ़ रहा है, इनटेक पेशेंट का बढ़ रहा है और डॉक्टर को जो है वो एक्स्ट्रा ड्यूटी देनी पड़ रही है और वहाँ पे स्टाफ की कमी है, और वो तमाम चीज़ें, वो तमाम इंस्ट्रूमेंट जो एक डॉक्टर को फ्रंट लाइन पे लड़ने के लिए रिक्वायर्ड हैं, शायद उनमें भी जो है वो बाज़ दफ़ा कमी होती है या प्रिवेंटिव मेजर उस तरह नहीं मिल सकते कि जिस तरह वो शख्स जो है या वो प्रोफेशनल जो है वो सेटिस्फाइड फील करे कि हाँ मैं अपने आप को जो है वो सिक्योर फील कर रहा हूँ। फिर एक और चीज़ है कि डॉक्टर के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर है कि हमारी बहुत सारी जो अवाम है वो ये समझ रही है कि कोरोना कुछ है ही नहीं है, ये तो बस शायद इमदाद लेने के लिए डॉक्टर जो है ना वो लोगों को मार रहे हैं और जो है वो उसको इंजेक्शन दे रहे हैं और उससे जो है वो डेड बॉडी को जो है वो शायद बाहर भेजा जाता है और उससे जो है वो फंड मिलेंगे और हुकूमत ने उससे कर्जे उतारने हैं और डॉक्टरों ने जो है ना आगे इतना एक दिन का नंबर पूरा करना होता है। हालांकि ये वो सारी लेमैन की ज़बानी बातें हैं जो कि बहुत सारे लोग इसके ऊपर एक, क्योंकि हमारा जो मेजॉरिटी तबका है वो है भी ऐसा कि उसको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता और वो इतनी आगाही नहीं रखते, क्योंकि हमारी कौम जो है मेरा ख्याल है कि अपनी ज़ात के बारे में भी जो है वो आगाही नहीं रखते। फिर इस तरह के स्ट्रेसर जब डॉक्टर के ऊपर आते हैं और मरीज की कंडीशन ख़राब होती है तो फिर उसके अटेंडेंट जो हैं वो एक लड़ाई के ऊपर उतर आते हैं, वो एक जंग की शक्ल के ऊपर उतर आते हैं कि भाई आपने जो है वो, हालांकि डॉक्टर का इसमें कोई कसूर नहीं होता, वो उस चीज़ को जो है वो अपनी जान को खतरे में डाल के दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए, क्योंकि डॉक्टर भी तो एक इंसान है, वो जब एक मरते शख्स को देखता है और वो एक कीमती जान तो उसके सामने मौजूद होती है और वो देख रहा होता है कि ये ऐसा ऐसा जो है वो मौत की तरफ जा रहा है, तो मेरा ख्याल है कि ये डॉक्टर भी एक ह्यूमन बीइंग है, वो उसको बड़ा रियलाइज करता है और यही चीज उसके लिए एक इनके फेयर बनती है और उसी फेयर को वो अपने अंदर भी इम्प्लीमेंट करता है कि अल्लाह न करे अगर ऐसा मेरे साथ होता है तो मैं भी तो जो है वो ऐसे ही इस बीमारी की जो है वो दबोच में आ जाऊंगा। तो मकसद है कि यहाँ पे इंसान के ऊपर दो तरह के स्ट्रेसर जो है वो अपना असर डालते हैं, जो इंटरनल और जो है वो दूसरे एक्सटर्नल हैं। इसके साथ क्या होता है कि जब ये इंटरनल और एक्सटर्नल जो स्ट्रेसर्स हैं जब ये इंसान के ऊपर असर अंदाज होते हैं और इस हद तक असर अंदाज होते हैं कि वो गैर मामूली हद तक कि पर्सन जो है वो कुछ ना कुछ अपने अंदर गैर मामूली या इस तरह की चीज़ें जो हैं साइन एंड सिम्टम जो है वो महसूस करना शुरू कर देता है। और वो सिम्टम आम तौर पे 4 तरह के होते हैं, यानी कि एक उसमें ये है कि कॉग्निटिव सिम्टम होते हैं। अब कॉग्निटिव सिम्टम में ये है कि इंसान भूलना शुरू कर देता है, ठीक है, उसको जो है वो याददाश्त उसकी कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, ठीक है, वो एक चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट जो है वो नहीं कर पाता और उसको ये नहीं पता होता कि मेरी आज की जो अपॉइंटमेंट है वो टास्क है वो इन चीज़ों के बारे में उसको भूलना, क्योंकि या कॉग्निशन में जब उसकी इंटरफेरेंस आएगी तो जो वो सोच रहा है वो बेसिकली उसके अंदर वो स्ट्रेसर इंडिकेट हो जाएगा और वो जो केसेट जो पहले किसी याददाश्त के लिए या किसी काम के लिए या जिम्मेदारी के लिए चलनी थी, अब उसने अपना हिस्सा जो है वहां पे डिवाइड कर लेना है और उसकी जगह वो स्ट्रेसर जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। जब स्ट्रेसर चलेगा तो इंसान का माइंड जो है वो डाइवर्ट होगा। यानी इसकी एक बेहतरीन मिसाल ये है
कि अगर एक लैपटॉप के ऊपर हम 4-5 विंडो जो है वो ओपन कर लेते हैं तो जो उसकी जिनकी प्रोसेसिंग होगी वो स्लो हो जाएगी। क्यों स्लो हो जाएगी कि एट अ टाइम जो है वो 4-5 विंडो जो है वो काम कर रही हैं, तो उसकी प्रोसेसिंग कम होगी। ह्यूमन जो बॉडी है या इंसानी दिमाग, उसकी खसूसियत भी ऐसे ही है कि जब ज़्यादा चैनल उसमें ओपन कर लेंगे तो वो एनर्जी जो है वो गेन करना शुरू कर देंगे, और फिर जो उस वक्त की ज़रूरत होती है, जो जिम्मेदारी होती है, उसको जो है वो आप पूरा नहीं कर सकते, तो वो प्रॉब्लम जो है वो बनता है। अब इसी तरह फिजिकल सिम्टम है। फिजिकल सिम्टम में ये होता है कि इंसान की नींद जो है उसमें डिस्टर्बेंस आती है, इंसान के जो मसल टेंशन होना शुरू हो जाती है, वो सो के उठता है तो फ्रेश नहीं फील करता, वो अगर बैठा है तो उसके जो है वो जिस्म में दर्द होता है, उसके पट्टों में जो है वो दर्द होना शुरू हो जाता है, उसके जोड़ों में खिंचाव पैदा होना शुरू हो जाता है, हेडेक होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह बुनियादी अगेन क्या है कि इंटरनल लेवल के ऊपर जो है वो स्ट्रेसर चल रहे होते हैं। अगर हम बिहेवियरल की बात करें तो फिर ये है कि इंसान चंद ऐसे रवैये शो करता है, मीन कि वो इरिटेट होगा, अगर कोलीग उससे कोई बात करेगा तो उसको गुस्सा आएगा, वो इरिटेट, वो वापस आके फैमिली से बात करेगा तो फैमिली से जो है वो इरिटेट होगा, फैमिली वाले उससे पूछेंगे, हालांकि दूसरे लोग वो कंसर्न शो कर रहे होते हैं कि वो उससे बात करें, लेकिन उस शख्स को ये लग रहा होता है कि आप मुझे जो है ना वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप मुझे खराब कर रहे हैं, ठीक है। उससे एंगर डेवलप होता है, उससे अग्रेशन हो सकता है, उससे जो है वो कोई और ऐसा बिहेवियर जो है वो डेवलप हो सकता है जिससे रिलेशनल इश्यूज जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। फिर चौथी चीज़ है इमोशनल। यहाँ हमारी एक इंटेलिजेंस होती है जिसको हम आईक्यू कहते हैं, इसी के साथ एक हमारी और इमोशनल यानी कि इंटेलिजेंस होती है जिसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, जो हमारे इमोशन के ऊपर बेस करती है। कि आप देखें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो एक छोटी सी बात को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल के ऊपर ले लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जब कोई इमोशन या जो है उन तक पहुंचा, या सिचुएशन या स्ट्रेसर उन तक पहुंचा, तो उन्होंने उसको एक्स्ट्रा लेवल के ऊपर जो है वो रेगुलेट किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सोचते हैं, यानी अगर इमोशन की हम डेफिनेशन करें तो बड़ी सिंपल सी है कि टू अंडरस्टैंड, रेगुलेट एंड मैनेज द इमोशन, की जो सिचुएशन आपके ऊपर आके पड़ी है आपने उसको क्या करना है, उसको समझना है, ठीक है, यानी कि उसको अंडरस्टैंड करना है, फिर क्या है कि उसको रेगुलेट करना है, उसकी जांच पड़ताल करनी है, फिर उसके बारे में उसको मैनेज करना है कि ये रिस्पांस जनरेट करना है कि सिचुएशन में मुझे क्या बोलना चाहिए और मुझे क्या जो है ना वो एक्शन लेना चाहिए। अगर हम इसकी फिजियोलॉजी ऑफ स्ट्रेस पढ़ें तो उसमें बड़ी सिंपल है कि जब कोई स्ट्रेसर जो है वो बॉडी में एंटर होता है तो उसकी कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो है ना वो आती हैं, जैसा कि हमारा ब्रेन जो है वो तमाम मैसेजेस को रिसीव करता है। तो जब कोई वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन को रिसीव कि जो हाइपोथैलेमस है वो अलर्ट हो जाएगा, वो हाइपोथैलेमस आगे उस मैसेज को ट्रांसफर करेगा, तो देन क्या होगा कि वो पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ आएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या है कि ACTH जो एक हार्मोन है वो सिक्रेट होगा। जब वो सिक्रेट होगा तो वो एड्रीनल कॉर्टेक्स को जो है वो रेफर करेगा। एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है वो अगेन जो है वो स्ट्रेस हार्मोन को जो है वो रिलेट करेगा, और फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स जो है फॉर एग्जांपल कि राइज इन बॉडी टेम्परेचर आएगा या इंक्रीज हार्ट रेट होगा। यानी जब हम देखते हैं कि मुख्तलिफ सिचुएशन हमारे पास आती है कि हम परेशान होते हैं, कोई स्ट्रेसर आता है, बहुत सारे लोग, और इसकी और बहुत सारी यानी कि अलामात हैं कि स्वेटनिंग का होना, ठंडे पसीना आना, बालों का खड़ा हो जाना, ठीक है, और दिल की धड़कन का तेज हो जाना, फेस का जो है वो रेड हो जाना या पीला पड़ जाना, और जो है ठंडे पसीने आना, बॉडी का या जो है वो ठंडा होना या जो है वो ज़्यादा जो है वो गर्म हो जाना। ये वो सारी चीज़ें बेसिकली क्या हैं कि जो वो यानी कि आप बहुत सारे लोग, मेरा ख्याल है कि यहाँ पे डॉक्टर हजरात होंगे वो मेरे से ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं कि जब इस तरह का प्रोसेस होता है तो हमारी बॉडी जो है वो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर या केमिकल जो है वो ऐसे रिलीज करती है कि जिससे हमारी बॉडी के अंदर वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो है ना वो आते हैं, जिनको जो है हम बेस बना के, और वो रेस्पॉन्स फिर बिहेवियर की शक्ल में रिफ्लेक्ट होता है कि इंसान जो है वो हेजिटेट फील करता है,
بعض दफ़ा ऐसी भी सिचुएशन होती है कि यही कंडीशन अगर आगे बढ़ती है तो इंसान पैनिक होता है और वो पैनिक अटैक होता है, और वो पैनिक अटैक में वो अनकॉन्शियस भी होता है और वो समझता है कि शायद मुझे जो है ना वो कोई हार्ट अटैक हो गया है। नेक्स्ट क्या है कि जर्नल अडॉप्टेशन सिंड्रोम, अगर हम इसको क्यों कहते हैं कि स्ट्रेस जो है ना ये एक ऐसा सिंड्रोम है कि, लेकिन एक बात याद रखनी है कि स्ट्रेस जो है वो एक रात के अंदर इंसान के अंदर नहीं आता है, ना एक रात में ये आता है, ना ओवरनाइट पे है वो चला जाता है। स्ट्रेस को ऑब्जर्व करना भी एक एक्सरसाइज है कि मेरे दिमाग में एक खौफ पैदा हुआ, मैंने उस खौफ को सेव करना शुरू कर दिया, मैंने उस खौफ के बारे में सोचना शुरू कर दिया। यानी कि अगर एक मैं और बात करूं कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी खवातीन होती हैं, उनको छिपकली से डर लगता है, उनको बिल्ली से डर लगता है। हालांकि वजह क्या होती है कि ये मैसेज उनको कहीं से डिलीवर हुआ होता है कि आपने जो है वो इससे डरना है। वो डर क्या है? इसलिए है कि ये चीज खतरनाक है। जब वो चीज खतरनाक है और दिमाग में बैठ गई है तो जब भी आप उसको देखेंगे तो आप समझेंगे कि आपने खतरा मोल ले लिया है, आप उससे एस्केप करेंगे। अब इसी तरह जो है हमारी जो लाइफ की सिचुएशंस होती हैं उनमें भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो स्ट्रेसफुल होती हैं, क्योंकि जिंदगी में अप्स एंड डाउन आना एक जिंदगी का हिस्सा है। और ये शायद हमारी बहुत सारी गलतफहमी है कि जिंदगी में बहुत सारी चीजें हम अपने स्ट्रेस से और स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर के हम सीखते हैं। जैसे अगर हम एक बात कहें कि एक जो है वो ज्वेलर है, वो बड़ी खूबसूरत जो है वो ज्वेलरी बनाता है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो ज्वेलरी जब हमारे सामने एक शो पीस में आती है तो वो ऐसे नहीं बन के आती, उसको बड़ी एक मुश्किल के प्रोसेस से गुजारा जाता है, जो कि शायद उसके लिए बड़ा तकलीफ दे होता है। इंसान जो है उसके लिए तकलीफ दे एक बड़ी गलत चीज है, लेकिन अगर वो मुश्किल सिचुएशन से गुजरता है और अपने जो रिसोर्सेज हैं और अल्लाह ताला ने जो ताकतें उसको दी हैं उसके ऊपर अमल करता है और मजबूत रहता है, तो मेरा ख्याल है कि वो एक दिन अपनी कामयाबी को हासिल कर लेता है और इस टेस्ट को हमेशा के लिए जो है वो नाकामी यानी कि दे देता है। लेकिन होता क्या है कि अलार्मिंग रिस्पांस होता है कि जो सिचुएशन हम पे गुजर रही होती है वो अलार्म बजाना शुरू कर देती है, वो हमारे दिमाग में एक तरह का इंडिकेशन जो है वो आना शुरू हो जाता है। और इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे एक ड्राइवर की होती है कि उसने जैसे जाके ड्राइविंग सीखी और आहिस्ता आहिस्ता उसने जब वो एक्सपर्ट हो गया तो अब उसे ड्राइविंग करने के लिए कॉन्शियस माइंड की जरूरत नहीं है, उसका अनकॉन्शियस माइंड जो है वो अमल करेगा और वो खुद ही उस ब्रेक को दबाएगा, खुद ही जंप के ऊपर आके गाड़ी को रोकेगा, खुद ही गाड़ी को जो है वो रन करेगा। तो यही चीज एक तरह की हमारे दिमाग का हिस्सा बन जाती है और वो अलार्म जो है हम उसको बार बार वो हमारे दिमाग में बजता है तो हम उस अलार्म को फिर उस सिचुएशन को, उस परेशानी को अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं और फिर अडॉप्ट करते 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 ये हालत होती है कि हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं और हमारी वो सिम्टम आते हैं जो पहले मैंने डिस्कस किए हैं कि जो है कॉग्निटिव सिम्टम है, फिजिकल सिम्टम है, बिहेवियरल हैं। इसके बाद जो है अगर हम कोविड-19 में ये देखें कि जो हमारे यंग डॉक्टर हैं उनके क्या स्ट्रेसर हैं, तो उनमें मेन स्ट्रेसर ये है कि माय फ्रेंड्स एंड कलीग आर बीइंग इन्फेक्टेड, कि दोस्त जो आसपास हैं वो इन्फेक्ट हो रहे हैं, शायद कहीं मैं भी ना हो जाऊं। ठीक है, माय फैमिली मेंबर गेट इन्फेक्टेड, कि मेरे जो फैमिली मेंबर हैं फिर वो डेथ को सामने देख रहे हैं, फिर उनका जो एक एटीट्यूड ऑफ यानी कि पेशेंट है उसको वो फेस कर रहे हैं कि पेशेंट जो है वो लाजिम बात है जब मुश्किल में होता है और उसको लगता है कि मेरी जिंदगी खतरे में है तो वो अग्रेसिव होगा और वो डॉक्टर को जो है वो अटेंशन सीख करेगा कि मेरी हालत खराब हो रही है तो बार बार डॉक्टर को बोला। अब डॉक्टर ने सिर्फ एक पेशेंट को नहीं देखना, उसने बहुत सारे लोगों को देखना है, तो ये सिचुएशन उसके लिए क्रिटिकल हो जाती है। फिर फेयर ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड के उसको ये भी होता है कि अगर मैं इस इनके डॉक्टर पेशेंट के पास जाऊंगा तो जो है कहीं ऐसा ना हो कि उससे मैं इन्फेक्ट हो जाऊं, और फिर वो डेथ को देखता है एंड एब्सेंस ऑफ द अदर रिसोर्सेज के जो उसको ट्रीटमेंट के अंदर गैप्स नजर आते हैं, तो वो ये समझता है कि अब ट्रीटमेंट एफिकेसी जो है वो इतनी अच्छी नहीं होगी क्योंकि उसके अंदर ये मसाइल जो है ना वो पैदा हो रहे हैं। अब हम अगर देखें कि जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हमारे ऊपर आती है तो हमें क्या करना चाहिए, मेरा ख्याल है कि उसमें चंद चीजें हैं उनको देखना चाहिए। सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि असेस योर थ्रेट लेवल,
कि एक परेशानी जो कि स्ट्रेसर की शक्ल में आपके ऊपर आई है उसको जांचें, उसको बेशक ये देखें कि 0 to 10 रेट कर लें, कि 0 को कहें कि ये कोई परेशानी नहीं है, 10 को कहें कि बहुत ज्यादा परेशानी है, इसके अंदर रेट कर लें कि आपकी परेशानी का लेवल जो है वो कितना है। फिर क्या है, आइडेंटिफाई व्हाट यू कैन कंट्रोल। अब ये देखें कि आपके पास क्या आपके नॉलेज में, आपके तजर्बे में, आपके रिसोर्सेज में, जो कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारी सलाहियतें नवाजी हैं, कि उनमें कोई ऐसी चीज़ है कि जो आप इसको जो है वो कंट्रोल करने में मददगार साबित हो सकती है। फिर क्या है कि एक्सेप्ट व्हाट यू कैन नॉट कंट्रोल, और उसमें साथ ये भी देखें कि इसमें कौन सी ऐसी सिचुएशन है। मीन कि मैं यहाँ पे एक चीज़ कहता हूँ, एक डॉक्टर है, पेशेंट को देख रहा है और पेशेंट की सिचुएशन जो है वो ग्रेजुअली वर्स होती चली जा रही है। अब यकीनन उस डॉक्टर के साथ कोई कोलीग भी होगा, कोई उसका सीनियर भी होगा, कोई उसके साथ एसोसिएटेड टीम में और मेंबर भी होगा। तो पहली चीज तो है कि वो ये देखे कि ये जो पेशेंट है, क्या इसकी सिचुएशन को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, या सिचुएशन अगर हाथ से निकल रही है तो वो वाकई इस बात को एक्सेप्ट करें कि हाँ ठीक है, मुझे किसी कलीग को जो है वो रिपोर्ट करने की जरूरत है या किसी से हेल्प लेने की जरूरत है, क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जो रिसोर्सेज है, मेरा जो एक्सपीरियंस या एक्सपर्टीज है वो मुझे जवाब दे रही है, तो इसकी जान बचाने के लिए ये मैंने एग्जाम्पल दिया। अब इसी तरह इस एग्जाम्पल को हम लाइफ की बहुत सारी सिचुएशन के अंदर जो है वो पुट कर सकते हैं। फिर दूसरी क्या है, नेक्स्ट, एक्टिवली चेंज नेगेटिव थॉट। हाँ, बहुत दफा ऐसा भी होता है कि आपके पास रिसोर्सेज भी होते हैं, लेकिन आप सिचुएशन को देख के अपने हाथ पांव जो है वो इंसान के फूलना शुरू हो जाते हैं। वो ये समझता है कि मैं इसको जो है वो शायद कर नहीं सकता, तो वो एक नेगेटिविटी का एलिमेंट जो है वो अपने ऊपर आता है। तो उस सिचुएशन में आप ये कोशिश करें कि एक्टिवली उस नेगेटिव थॉट को जो है वो चेंज करें। और देन क्या है कि स्टेइंग एक्टिव, कि अपने आप को कहें कि वो उस चीज को जो दिमाग में आ रही है कि मुझे नुकसान पहुंच जाएगा, उसको साइड पे हटाएं। ठीक है, जैसे हमारे कंप्यूटर के ऊपर स्क्रीन है, अगर मैं यहाँ पे देखूं कि मैं इस स्क्रीन को यहाँ से हटाऊंगा, आपको नहीं नजर आ रही, लेकिन मैं इसको क्लिक करता हूँ, स्क्रीन नजर आ रही है। ये इतना तो मेरे कंट्रोल में है कि मैं एक चीज को शो कर भी सकता हूँ और एक चीज को जो है वो स्क्रीन से हटा भी सकता हूँ। और जब हम किसी सिचुएशन में होते हैं तो तब भी हम ऐसा कर रहे होते हैं। यानी अगर आप एक बहुत सारी यानी कि स्ट्रेंजर सिचुएशन में हैं, तो आप क्यों ना ऐसा सोचें कि जो आपकी जिंदगी में कोई एक खुशी वाली बात है उससे, हालांकि ऐसा नहीं, वैसे एक बड़ी बेवकूफाना बात है कि आप परेशानी में हैं लेकिन आप पे खुशी की बात सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमने ये नहीं देखना कि वो जो हमारी नाम्स के एतबार से ठीक है, हमने यहाँ ये देखना है कि मेन रिसोर्स जो है वो हमारा ब्रेन है, वो नेगेटिव थॉट की वजह से अफेक्ट हो रहा है। तो अगर हम उसको एक इनपुट ऐसा देते हैं कि जो उसको जाके स्टेबल करता है, तो हमें उसको देने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये तो एक इंटरनल मैटर है जो हम सोच रहे हैं, लोग तो नहीं देख रहे हैं कि आप अपने माइंड में क्या सोच रहे हैं। हम तो अपने माइंड को बूस्टअप करने के लिए वो सिचुएशन जो है वो देख रहे हैं और अपने माइंड को जो है वो स्ट्रांग कर रहे हैं। फिर एक और चीज है कि एक वे है एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को देखने का। यकीनन जो वो सिचुएशन आपके पास आई है उसका कोई पास्ट भी होगा। अगर पास्ट है तो आप ये डिसाइड करें कि क्या इस वक्त की जरूरत को आपने पूरा करना है या इस एनर्जी को आपने पास्ट में लेके जाना है। तो फॉरगेट द पास्ट, कि आप जो हो चुका है, जो गलत हो गया है, जो प्रॉब्लम हो गया है, उसको छोड़ दे, उसको भूल जाए। फोकस ऑन द प्रेजेंट, कि जो करंट सिचुएशन है आप उसके ऊपर आ जाएं। उसमें क्या है कि आइडेंटिफाई योर मूड। देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका मूड जो है वो अफेक्ट हो रहा है और आप जो है वो परेशान हो रहे हैं। फिर क्या है कि डू ग्रेटिट्यूड, कि आप अपने ग्रेटिट्यूड जो है वो करना शुरू करें। देन क्या है कि यूज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। अल्लाह ताला ने हम सबको बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज दिए हैं कि मुश्किल वक्त में वो हमारी मदद करते हैं। हमारा आईक्यू, हमारी जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंस, हमारा सब्र, हमारी पेशेंस, इस तरह की चीजें। फिर क्या है कि सेट प्रायोरिटीज। ये देखिए कि इसमें मैं किस चीज को जो है वो प्रायोरिटाइज कर सकता हूँ, कि अगर 2 4 5 सिचुएशन भी हैं तो सबसे पहले मुझे किसको देखना चाहिए।
देन क्या है कि मेक एक्टिव डिसीजन, कि आप यानी कि अपने दिमाग से जो है वो एक एक्टिव डिसीजन लें कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कि सिचुएशन में मेरे लिए क्या बेस्ट डिसीजन, और रीच टू द सोल्यूशन, और आप एक सोल्यूशन के ऊपर पहुंचेंगे। देन क्या होगा कि यू विल रिमेन पॉजिटिव अबाउट द फ्यूचर, तो आपको एक जो है वो स्ट्रेंथ जो है वो मिलना शुरू हो जाएगी। एक और वे भी है कि हम उसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को एक और तरीकाकार से भी जो है वो मैनेज कर सकते हैं। वो क्या है, थिंक, सोचें, वही कि रेट करें क्या प्रॉब्लम है, देन इवेल्युएट करें, उसको असेस करें, उसका एक रेटिंग स्केल डेवलप कर लें, देन उसको जज करें कि ये ऐसा हुआ क्यों है। देन क्या है कि आउटकम इज थ्रेटनिंग, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसका आउटकम या नतीजा जो निकलने वाला है वो गलत है। अगर नतीजा गलत है तो फील कंफर्ट एंड रिलैक्स। उस वक्त आपकी अगर तो नतीजा पॉजिटिव होगा तो आप ऑटोमेटिकली जो है वो फील कंफर्ट होंगे और रिलैक्स होंगे, आप मुतमैन होंगे। लेकिन अगर आउटकम थ्रेटनिंग है तो आप फेयरफुल होंगे। ऐसी सिचुएशन में क्या है कि आपको खुद को कंफर्ट करने की जरूरत है, मुतमैन करने की जरूरत है, और जो है रिलैक्स होने की जरूरत है। देन क्या है कि रिमेन स्टेबल, आप अपनी उस काम के ऊपर फोकस करें और अपने काम के ऊपर जो है वो स्टेबल रहें, एंड बी कॉन्फिडेंट। जब स्टेबल होंगे तो आप मजीद कॉन्फिडेंट होंगे, मजीद कॉन्फिडेंट होंगे तो देन ऐसा भी हो सकता है कि आप दूसरों से भी डिस्कस कर सकते हैं कि वो सिचुएशन, अगर आपको कोई ऐसी यानी कि प्रॉब्लम थॉट मिलती है कि जहां पे आपको वक्त मिलता है कि आपके आसपास यकीनन लोग मौजूद होते हैं, आप उनसे शेयर कर सकते हैं एंड जनरेट द सोल्यूशन। और उससे, क्योंकि पहले आपने खुद उसका सोल्यूशन ढूंढा है, फिर आपने दूसरों से उसको डिस्कस कर लिया है, तो जब आपके पास सेकंड ओपिनियन आ गई और वो आपके डिसीजन को सपोर्ट कर रही है, तो देन जनरेट द डिसीजन, फिर आप डिसीजन ले लें। फिर जो है फिर आप ये ना डरें कि जो आप फैसला ले रहे हैं वक्त की जरूरत है उसको ले लें, क्योंकि ये बात भी हकीकत है, हर इंसान सोच समझ के फैसला करता है, लेकिन बहुत सारे फैसले गलत हो जाते हैं। शायद उसमें अल्लाह की तकदीर होती है या उसमें और कोई एक्सटेनियस वेरिएबल होता है। तो फिर घबराए ना और फैसला जो है वो ले लें, क्योंकि वो फैसला लेंगे तो आप अगले स्टेप पे जो है वो जाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है कि हम उस टेस्ट को क्विकली कैसे जो है वो मैनेज कर सकते हैं। कुछ हमारे पास ऐसे जो है वो रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि चेंज द सिचुएशन। जैसे दो लोगों के दरमियान झगड़ा हो जाता है और दोनों जो है वो एक टेंस सिचुएशन में आते हैं, तो यहाँ पहला काम ये है कि उस सिचुएशन को चेंज कर ले। आप विड्रा कर ले, चलो वो नहीं विड्रा कर रहा, आप कर ले, ठीक है, सिचुएशन को चेंज करें। इवन कि यहां तक भी होता है कि आप लेटे हुए हैं और आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो आप उठ जाएं। आप अगर खड़े हैं, अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, आप चलना शुरू कर दें, एक काम। दूसरी बात यह है डीप ब्रीथिंग करें। डीप ब्रीथिंग एक बड़ी कह लें कि एक बहुत बड़ी मेडिसिन है जो क्विकली आपको जो है वो एक रिलैक्सेशन देती है कि आप फौरन जो है आपने जो है वो लंबे लंबे जो है वो सांस लेना शुरू कर दें। फिर क्या है कि मसल रिलैक्सेशन। मसल रिलैक्सेशन क्या है कि अपने माइंड में कुछ पॉजिटिव चीजें जो हैं उनको जो है मैनेज करना शुरू कर दें और उनको अपने माइंड में रिफ्लेक्ट करना और उनको देखना। यानी जैसे अगर मैं यहाँ पे कहूँ, हम जितने इंसान हैं हमारी जिंदगी में जहाँ कुछ बुरे वाकयात होते हैं वहाँ अच्छे वाकयात भी होते हैं। मेरा ख्याल है यहाँ पे जितने लोग सुन रहे होंगे, अगर मैं ये कहूँ कि आप अपनी जिंदगी के एक बहुत अच्छे वाकया को याद करें तो मेरा ख्याल है फौरन दिमाग वहां पे पहुंच जाएगा और वो केसेट चलना शुरू हो जाएगी। अगर आप उस केसेट को चलाएंगे तो आप जो करंट सिचुएशन होगी उसको भूल जाएंगे। तो एक तो चीज ये है कि आप उसको इमेजिन करें। फिर माइंडफुलनेस है कि आप अपने माइंड के अंदर जो है वो पॉजिटिव चीजों को लेके आए और वो चीजें लेके आए कि जो एनर्जी बूस्टर हैं। फिर मेडिटेशन है कि मेडिटेट करें। और इसके लिए मैं यहाँ पे एक टिप्स ये देना चाहूंगा कि बिलफर्ज अगर ऐसा करें कि एक इंसान अगर मेरे से ये सवाल करे कि मैं जो है ना वो स्ट्रेस से नहीं निकल सकता तो कोई क्विक रेमेडी जो है वो मुझे बताएं, तो मैं एक उसको टिप दूंगा। मैं कहूँगा आप जिंदगी की 5 जो बेहतरीन चीजें हैं जिनको सोच के, जिनको देख के, विजुअलाइज करके आप खुश होते हैं, आप उनका क्या करें कि हर एक उस सिचुएशन के
2-2 3-3 मिनट का एक क्लिप जो है वो उसमें निकाल लें और 2-2 3-3 मिनट के उस क्लिप को इंटीग्रेट करके एक जो है 15 से 20 मिनट की एक ऐसी मूवी बना लें कि उसमें आप ये कहें कि एक स्टेप ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। जब भी आपके ऊपर कोई मुश्किल वक्त आता है और आपका स्ट्रेसर इतने बढ़ने लगते हैं कि आप उसको कोप नहीं कर पाते, तो आप फौरन जो है वो जो 15-20 मिनट का क्लिप है, जो वो वीडियो आपने अपने माइंड में सेट की हुई है, उसको ऑन कर दें। आप उसमें यानी करंट सिचुएशन को छोड़ दें और उस सिचुएशन में दाखिल हो जाएं और उसको देखना शुरू कर दें। यकीन माने आप 15 से 20 मिनट के बाद जो है वो कंफर्टेबल रिलैक्स फील कर रहे होंगे, आप रिलैक्स फील कर रहे होंगे, आप अपने आप को एक जो है वो प्रॉब्लम सिचुएशन में या क्राइसिस सिचुएशन में जाने से जो है ना वो रोक लेंगे। इसके अलावा क्या है कि टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, यानी एक कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनमें आपको अपने आप को जो है वो लुक आफ्टर करने की जरूरत है। यानी फील फ्री टू फील योर फीलिंग, कि आप जो कुछ फील करना चाहते हैं वो फील करें, लेकिन क्या है कि इंटेंशनली इम्प्लाई कोपिंग स्ट्रेटेजीज, लेकिन उसके साथ साथ उसको कंट्रोल भी करें। ऐसा नहीं है कि उसको बेकाबू छोड़ देंगे तो फिर जो है ना वो आपके हाथ से निकल जाएगी। परफॉर्म रेगुलर चेक्स इन योरसेल्फ, कि आप उसके ऊपर एक चेक भी रखें कि ये चीज जो मेरे अंदर अप्स एंड डाउन का शिकार हो रही है ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट करेगी। टेक अ ब्रेक फ्रॉम द न्यूज एंड सोशल मीडिया, यानी कि कुछ चीजें वो होती हैं जो आपके आसपास वो स्ट्रेसर क्रिएट कर रही हैं। एंड बी फोर्टाइल्ड बाय द रिमेम्बरिंग ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ मीनिंग ऑफ योर वर्क, के वो चीजें जिसको आप फोकस कर रहे हैं उनको जो है वो देखें। फिर क्या है कि कुछ और जो है इस तरह के यानी कि मसाइल हैं कि जिनको आप देखें कि आपने अपने स्टाफ की जो है वो केयर करनी है, आपके साथ जो एसोसिएटेड लोग हैं उनको मॉनिटर करना है, उनको देखना है। सम अदर कोपिंग मेथड, इसमें ये है अगेन कि आप ये करें, देखें कि एंजाइटी जो है उसको देखें कि रिकॉग्नाइज योर एंजाइटी इज क्वाइट नॉर्मल, कि आप अपने आप को देखें कि आपकी एंजाइटी जो है क्या ये नॉर्मल है या जो है ये कहीं आगे बढ़ रही है। अगर आगे बढ़ रही है तो उसको कंट्रोल करें। फाइंड अ डिस्ट्रैक्शन, आप कोई डिस्ट्रैक्शन, यानी वही वाली बात मैंने जैसे पहले भी बताया है कि आप जिस सिचुएशन से उस सिचुएशन से निकल के किसी और सिचुएशन को जो है वो फोकस करें। फाइंड न्यू वे टू कंट्रोल विद फ्रेंड्स, कॉन्टैक्ट विद फ्रेंड, के उसमें आप जो है जैसे आप देखें कि पहले हम पब्लिक प्लेस पे या एक दूसरे से मिल सकते थे, अब जो है एक दोस्तों से मिलने का क्या रास्ता है, फोन कॉल है हमारे पास और रिसोर्सेज हैं उससे। एंड देन फोकस ऑन योर सेल्फ, कि जैसे आप घर में बैठे होते हैं और आप अकेले हैं, आइसोलेट हैं, डिस्टेंस पे हैं, क्वारंटाइन हैं, तो ऐसी सिचुएशन में ये है कि आप अपने आप को कंटिन्यूसली एक चेक इन बैलेंस में रखें, कि आप उसको देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जो है वो प्रॉब्लम का शिकार हो रहे हैं। देन कनेक्ट विद इनके योर फीलिंग रहे। एंड बी काइंड टू योर सेल्फ एंड अदर, दूसरों के साथ भी जो है वो आप अपना टाइम जो है उसको स्पेंड करें और साथ रहें। फील फ्री टू फील योर फीलिंग। देन क्या है, ये मेरा ख्याल है यहाँ पे कुछ चीजें जो है वो रिपीट हो रही हैं, मैं इसको अगली स्लाइड पे लेके चलता हूँ। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि हम ABC हमने लर्न की फॉर द सेक ऑफ इंग्लिश, लेकिन आज हम एक ABC लर्न करेंगे टू मैनेज द स्ट्रेस। ठीक है, कि ये ABC टू Z जो है वो ये है, जैसे A है ऑलवेज गिव टाइम योरसेल्फ, आप अपने आप को टाइम दें। B क्या है कि अपने स्ट्रेस के बारे में कॉन्शियस रहें। C क्या है कि कंसंट्रेट ऑन द सिचुएशन। ठीक है। D क्या है, डेली एक्सरसाइज, कि आप अपनी कोई एक्सरसाइज करें। E क्या है कि ईट हेल्दी। F क्या है, फॉरगिव अदर, यानी दूसरों को माफ करेंगे तो यकीनन जो है आप इजी फील करेंगे। गेन पर्सपेक्टिव अबाउट द इश्यू, आप मसले को जो है वो तलाश करें। H क्या है, हग्स एंड लाफ्टर विद अदर। ठीक है। I क्या है, आइडेंटिफाई द स्ट्रेसर। J क्या है, जज योर परफॉर्मेंस। K क्या है कि कीप पॉजिटिव ऑन योर एटीट्यूड। और देन जो है आपके जो बाकी चीजें हैं उसमें यानी ये है कि एल्फ क्या है
کہ लिमिट्स जो है वो ड्रग करें या स्मोकिंग, जो आप यानी कि हम इस तरह के जो है वो शॉर्ट कट जो यूज करते हैं कि जब स्ट्रेस में आते हैं तो हम ये समझते हैं कि कोई फौरन दवा ले लें, कोई गोली ले लें, कोई जो है वो स्मोकिंग कर लें या कोई इस तरह की चीज ले लें जो हमें जो है वो रिलैक्स करे। एम क्या है? मैनेज योर टाइम। एन क्या है? नो वर्ड मस्ट टू लर्न। ओ क्या है कि आउटडोर एक्टिविटीज। लेकिन अब हम देखें तो इस सिचुएशन में हम आउटडोर एक्टिविटीज को जो है वो लिमिट कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में। एंड पी क्या है कि प्ले फेवरेट एक्टिविटीज। क्यू क्या है कि क्विट स्मोकिंग, ठीक है। एल क्या है? आर क्या है कि रिलेशनशिप्स, मैनेज योर रिलेशनशिप यानी स्ट्रेंथ योर रिलेशनशिप। एस क्या है? स्लीप वेल, कि आपको अपनी पूरी नींद जो है वो लेनी है। टी क्या है कि ट्रीट वेल, कि आप अपना एक जो है वो मिलना जुलना, अपना जो है वो सलूक बेहतर करें, अंडरस्टैंडिंग थिंग्स हैं। वी क्या है कि वेरीफाई इंफॉर्मेशन, के जो इंफॉर्मेशन आपको मिली है आप उसको जज करें। डब्ल्यू क्या है कि वरी लेस, कि अपने आप को कम जो है वो परेशान हो, ठीक है। वाई क्या है कि ईयरली गोल, अपने लॉन्ग टर्म गोल जो है वो बनाएं। जी क्या है कि जिस्ट फॉर लाइफ। एंड लास्ट क्या है कि लास्ट पे मैं एक जो है वो चीज कहना चाहूंगा, वो ये है कि थॉट ऑफ द डे, क्या हमें रोजाना जो है वो क्या करना चाहिए। हमें रोजाना ये चीज देखनी चाहिए कि व्हेन माइंड इज वीक, जब हमें पता चला कि हमारा माइंड कमजोर है, देन सिचुएशन इज अ प्रॉब्लम, और वो सिचुएशन एक मसला है। व्हेन माइंड इज बैलेंस्ड, जब माइंड जो है वो बैलेंस है, द सिचुएशन इज अ जस्ट चैलेंज, प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट चैलेंज। व्हेन माइंड इज अ स्ट्रांग, इट मीन के सिचुएशन बिकम अपॉर्चुनिटी, तो वो सिचुएशन जो है वो प्रॉब्लम नहीं बनेगा बल्कि आपके लिए जो है वो एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। एंड नाउ क्वेश्चन, क्वेरी एंड कमेंट्स। Thank you so much, sir. सर, जब ड्यूरिंग वार्ड या कोई भी ऑन ड्यूटी जब हम होते हैं डॉक्टर्स, तो एक डिफरेंट हमारे एक्शंस होते हैं कि हम ओवरली सैनिटाइज कर रहे हैं और हर चीज़ को हाथ लगाते हुए हमें डर लग रहा है, तो एक्शंस हमारे उस लिहाज से चेंज होते हैं। अच्छा, इस पेशेंट्स को डील किया तो हमने जल्दी से हाथ सैनिटाइज कर लिए, ग्लव्स जल्दी से पहन के चले जाओ, अदरवाइज आपको अगर विदाउट ग्लव्स, तो ये स्ट्रेसेस, ये हमारे बिहेवियर्स जो इस वजह से चेंज हो रहे हैं, तो आप इस पे करेंगे कि हमें क्या ये एक्शंस कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम कि वो चीज़ें, कुछ चीज़ें हार्मफुल भी हैं जो हम ओवरली कर रहे हैं, तो इन पे जरा आप थोड़ा गाइड कर दें। अब एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि ये क्या है, कोरोना क्या है, कि इससे ये चीज है कि ये एक वबा है जो एक से दूसरे शख्स को जो है वो ट्रांसफर होती है, यानी कि एक जर्म कह लें, एक से दूसरे को जो है वो लग, और इससे हमने बचना है। लेकिन ये ह्यूमन नेचर ये है कि एक इंसान जो है जब उसे लगता है कि किसी भी चीज से कोई बीमारी का खतरा होता है तो वो बचाव की तदाबीर जो है वो यूज करता है। जैसे एक अगर हम कहें कि ऑब्सेशन, यानी इसको मैं कहूंगा कि यहाँ पे एक वो सिचुएशन आ जाती है कि मकसद है कि ग्लव्स चढ़ाना, हाथों को सैनिटाइज करना, उनको धोना, ये एक तरह की नॉर्मल एक्टिविटीज हैं। लेकिन क्योंकि हम डॉक्टर भी एक इंसान है, वो ये समझता है कि ये इससे कोई इन्फेक्शन हो सकती है तो वो ओवर जाएगा। यानी अगर उसको लगे कि मकसद है कि वो एक उसने पेशेंट को देखा है, वो हट के आया है, उसने अपने ग्लव्स चेंज किए हैं और जो है हाथों को धोया भी है, सैनिटाइज भी किया है, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे जो एहतियाती तदाबीर हैं उसको उसने फॉलो कर लिया है। लेकिन उसने दोबारा ग्लव्स भी पहन लिए हैं और हाथों को सैनिटाइज भी कर लिया है, लेकिन अगेन माइंड में ये ख्याल जो है वो आ रहा है कि नहीं, मुझे ये ग्लव्स भी चेंज करने चाहिए, मुझे हाथ को दोबारा जो है वो सैनिटाइज भी करना है, मुझे डिस्टेंस पे भी रहना है। और ये ख्याल अगर बार बार आपके माइंड में ट्रिगर कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि ऐसी सिचुएशन में आप थोड़े ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। तो उसको आपको थोड़ा अपने आप को कूल करने की जरूरत है कि आप काउंट कर लें कि एक, क्योंकि आप तो डॉक्टर हैं, मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं
کہ आपको जो है वो कितनी दफ़ा ग्लव्स चेंज करने चाहिए और क्या जो आपको रिकमेंडेशन दी गई है उन रिकमेंडेशन को फॉलो करके अगर मजीद आपके माइंड में कोई चीज ऐसी आती है जो आपको ऑब्सेस्ड बनाती है तो फिर आप अपने माइंड को ये इंडक्शन दें कि मैं पैनिक हो रहा हूं, मैं ऑब्सेस्ड हो रहा हूं और मैं वहम कर रहा हूं, जबकि ऐसा नहीं है। मैं जो है वो बिल्कुल ठीक तरीके के जो एहतियाती तदाबीर हैं मैं उनको फॉलो कर रहा हूं। तो इससे क्या होगा कि जब आप अपने माइंड को ये इंडक्शन देंगे तो आप इंटरनली जो है वो स्टेबल भी होंगे और आपको आहिस्ता आहिस्ता इस चीज के ऊपर जो है वो कंट्रोल आएगा। अदरवाइज क्या होगा कि आपका वो स्ट्रेसर जो है या जो ऑब्सेस्ड वो सिचुएशन है वो बढ़ती चली जाएगी, तो एक वक्त ये आएगा कि आप के अपने अंदर जो है वो स्ट्रेस की इंटेंसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। फिर ये होगा कि आपको डॉक्टर यानी कि पेशेंट के पास जाते हुए बहुत ज्यादा खौफ आएगा, और अगर फिर पेशेंट को डील भी कर रहे होंगे तो वो खौफ इतना होगा आप उसको जो है वो सही तरीके से जो है वो ट्रीट नहीं कर सकेंगे और ना उसको जो है वो इंटरवेंशन प्रोवाइड कर सकेंगे। जी आवाज आ रही है? डॉक्टर नईमा आपका माइक म्यूट है। जी जी बानूर, आपके पास कोई क्वेश्चन है सर के लिए? नहीं, ऑब्सेशंस पे था, यू कवर्ड दैट। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज भी कहना चाहूंगा कि जो एक चीज है कि मकसद है कि वल्नरेबिलिटी जो है ना, वल्नरेबिलिटी जब भी डेवलप होती है तो इंसान खौफजदा होता है। और कोविड-19 में अगर देखें, वो चाहे डॉक्टर है चाहे आम आदमी है, घर है, हर बंदा वल्नरेबिलिटी की तरफ जो है उसका शक ज्यादा जा रहा है, वो ज्यादा उस चीज के ऊपर परेशान हो रहा है। तो हमें, और फिर यानी इसमें यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि देखें, एक बैलून होता है, जब हम उसमें हवा भरते हैं तो वो ऐसे नहीं है कि मुकम्मल तौर पे बर्स्ट हो जाता है, उसका एक हिस्सा ऐसा होता है जहां से वो जाके फटता है। तो फिर यहाँ पे एक चीज क्या है कि मेरा ख्याल है हम जितने ह्यूमन बीइंग हैं, किसी को बीमारी का डर होगा, किसी को स्ट्रेस से डर लगेगा, किसी को कोई और मसला होगा, किसी को कॉन्फिडेंस की कमी होगी, किसी को कोई और शिकायत होगी। तो ऐसी वल्नरेबिलिटीज जो होती है ना, जब उन वल्नरेबिलिटीज के ऊपर कोई स्ट्रेस आ जाता है तो फिर क्या होता है कि वो वल्नरेबिलिटीज की डायरेक्शन उन स्ट्रेसर की तरफ होती है। मकसद है कोई डॉक्टर जो है अगर जो है उसको जरासीम से डर लगता है तो, और वो वल्नरेबिलिटी उसके अंदर एक जरूरत से ज्यादा है, तो वो इस सिचुएशन में ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाएगा। अब एक और चीज भी है कि एट द सेम टाइम कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो ज्यादा केयरलेस होते हैं, यानी ज्यादा केयर होना और ज्यादा केयरलेस होना दोनों एक तरह के प्रॉब्लम है। अब यहाँ इस सिचुएशन में देखें तो कुछ वो डॉक्टर, जो मेरा ख्याल है कि कुछ ऐसे होते हैं कि जो उनको प्रिवेंटिव मेजर लेनी चाहिए वो ऐसी नहीं लेते, लेकिन जब वो अब डर रहे हैं तो अगर ऐसी सिचुएशन में वो केयरलेस एटीट्यूड शो करेंगे तो वो मजीद वल्नरेबिलिटी का जो है वो शिकार होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में उनको क्या करने में, उनको ये प्रिवेंटिव मेजर अडॉप्ट करने में डिफिकल्टी होगी, और जो ज्यादा वल्नरेबल है, ज्यादा केयरिंग है, उसको कंट्रोल करने में जो है वो डिफिकल्टी होगी। तो दोनों चीजें ऐसी हैं जो माइंड में जो है वो चल रही हैं, लेकिन हमने उनको एक, क्योंकि हमारे पास जैसे आप डॉक्टर हैं, आपको हिदायत दी गई है कि यहाँ तक जो है आपने इतनी प्रिवेंटिव मेजर जो है वो यूज करनी है। अगर आप उन प्रिवेंटिव मेजर को यूज कर रहे हैं तो फिर आप अपने आप को साथ जो है वो सेटिस्फाइड करने की कोशिश करें। या जहां कोई क्रिटिकल सिचुएशन आपके पास आ जाती है, मकसद है एक मरीज है, उसके घर वाले आके आपसे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी अपनी सेफ्टी है। तो उसमें पहली चीज तो ये देखें कि उस करंट सिचुएशन में आप अपने आप को सेफ कैसे रख सकते हैं, तो एक काम तो ये करें। दूसरी बात ये है कि आप कितना जल्दी वो मैसेज अपने जो है वो अथॉरिटी को डिलीवर कर सकते हैं वो करें, ताकि वो आप तक पहुंचे, आपकी मदद को जो है वो पहुंचे, या आपकी उस सिचुएशन को हैंडल करने में जो है मदद करें। और दूसरी चीज ये है कि पेशेंट को देखें कि अगर पेशेंट ज्यादा अग्रेसिव हो रहा है तो कोशिश करें कि आप उसको ज्यादा उसके साथ आर्ग्यूमेंट ना करें।
ठीक है, उसको कहें कि हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी जो सिचुएशन है या आपका जो प्रॉब्लम है मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, लेकिन जो है मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं इस बात को समझता हूँ, मुझे थोड़ा मौका दें कि इस सिचुएशन को है वो बेहतर करने का, आपकी सारी बातें जो है वो तो वो कूल डाउन हो जाएगा। तो उसको थोड़ा जो है वो आप साइड पे करें और अपनी चीज़ों को जो है वो लेके चलें। थैंक यू सो मच सर, इट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर अस कि आपने इतने अच्छे तरीके से एलैबोरेट किया। आई बिलीव कि कोई इस वक्त हमारे पास क्वेश्चन नहीं होगा क्योंकि ये वेल एलैबोरेटेड एक था। आई एम वेरी थैंकफुल टू बोथ ऑफ यू, महानूर एंड डॉक्टर कैसर, कि आपने हमें इस सेशन में ज्वाइन किया, हमारी हेल्प की और हमारे जो व्यूअर्स थे, हमारे जो क्वेरीज थी उनको निगोशिएट किया। क्योंकि मैं भी ऑन ड्यूटी ये चीज़ें सफ़र कर चुकी हूँ, मुझे भी ये ऑब्सेशंस एंड ये फियर, ये सारी बातें हम फेस करते हैं डेली बेसिस पे। आई होप कि ये देखने वालों को भी हेल्पफुल रहा हो उनके लिए कि और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि हम डिफरेंट तरीके से उनको हेल्प आउट करते रहें। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बोथ ऑफ यू।